एक और ज़ैनब दरिंदगी का निशाना बनी और निशाना बनने के बाद उसको मर्डर कर दिया गया है, जिसकी उम्र सिर्फ 9 साल थी और वो किसी के घर काम करती थी, जिस पे उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और जब वो मर गई उसके बाद उसकी लाश को जला दिया गया। 2 माह से वो रेप का उसको निशाना बनाता रहा है, इस बच्ची को छोटी बच्ची को। अब इसके मेडिकल के दौरान ये चीज़ प्रूव हो चुकी है कि इसके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट होता रहा है। कितों तो ज़ैनब काम कर रही थी? तकरीबन 4 माह से। कितनी तनख्वाह लेती थी? 4000 महीना में। बस जी। हुआ क्या था उस दिन, किस तरह उसको मारा था? हम ना घर जाते अपने मामा बाबा को खुल के बात नहीं बताते, वो बस ना हमने खुल के बात नहीं बताई। उन लोगों को लगा क्या हमने सच बोला है, हमने अपनी माँ बाप को सच बोला है, ये ऐसे हम करते हैं, ऐसे नहीं करते। इसी उन लोगों ने मेरी बहन को आज जला दिया। उन लोगों ने। आप कहाँ थी जब उसको आग लगाई? मैं ऊपर थी। आपने देखा था? जी, मैं ऊपर छत में। किसने आग लगाई? सलमा भाई ने। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 10 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੀਲੀ ਸੱਟੀ ਨੇ ਤੇ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੋਟ ਆ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਬੱਚੀ ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਮੁਰਦਾਖਾਨੇ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਬਰਫਖਾਨੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਪਈ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਵੇਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ नहीं ਵੇਖੀ। अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी से मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, एक और ज़ैनब दरिंदगी का निशाना बनी और निशाना बनने के बाद उसको मर्डर कर दिया गया। इस टाइम उसके वालिदैन जो हैं सरापा एहतजाज हैं और एसपी साहब के बाद पेश हुए हैं कि हमारी बच्ची को इंसाफ दिलाया जाए। ज़ैनब जिसकी उम्र सिर्फ 9 साल थी और वो किसी के घर काम करती थी, जिस पे उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और जब वो मर गई उसके बाद उसकी लाश को जला दिया गया। क्या मामला है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह ने। कितों तो ज़ैनब काम कर रही थी? तकरीबन 4 माह से। ते कितनी तनख्वाह लेती थी? 4000 महीना में। बस जी। की वजह बनी कि किस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਜ਼ੈਨਬ ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਜ਼ੈਨਬ ਤੇ ਮਹਿਵਿਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਸ ਚ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਕੁਲੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਵਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਖੜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਸ ਚ ਕੁਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਆ ਇਲਾਜ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਆਓ ਤੇ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ 2 ਜੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮਾਂ ਤੇ ਮੀਆਂ ਬੇਗਮ ਦੋਨੋਂ ਆਓ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਗਏ ਚਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੇਗਮ ਮੈਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਬੇਟੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਬੇਟੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਤਬਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪੇਪਰਾਂ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਵਕੀਲ ਕੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲੈ ਸਾਦੇ ਪੇਪਰ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਫ਼ ਪੇਪਰਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ੈਨਬ ਬੀਬੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੀ ਕੋਲ ਆਵੇ ਚੱਲਨੇ। ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਾ। ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਜ਼ੈਨਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 10 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੀਲੀ ਸੱਟੀ ਨੇ ਤੇ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੋਟ ਆ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੜੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਘਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿਤੇ, ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਘਰ ਹੀ ਪਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਘਰ ਪਈ ਰਹੀ, ਅੱਗੋਂ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਮਾੜੀ ਜੀ ਸੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ 2 ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਲਹਿਦਾ ਬਿਠਾਤਾ, ਲਹਿਦਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾ ਲੈਣੇ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੀ ਵਿਖਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੀ ਵਿਖਾਓ। ਨਾ ਮਹਿਵਿਸ਼ ਬੱਚੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਸੜੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੀ ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ, ਉੱਥੇ ਮੁਰਦਾਖਾਨੇ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਬਰਫਖਾਨੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਪਈ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਵੇਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ नहीं देखी। ये वो तस्वीर है ज़ैनब की, आप देख सकते हैं, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी थी और मुस्तकबिल जो है अपने वालिदैन का साथ देने के लिए 4000 के अवज़ अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गई। ये छोटी बहन मेरे साथ मौजूद है जो इसके साथ काम करती थी। बेटा मुझे बताओ कि
क्या हुआ क्या था उस दिन, किस तरह उसको मारा था? वो ना भाई डांटते थे मारते थे। वो एक दिन भाई को गुस्सा आया कौन सा हमें, उसके लिए भाई ने हम ना घर जाते अपनी मामा बाबा को खुल के बात नहीं बताते। वो बस ना हमने खुल के बात नहीं बताई, उन लोगों को लगा क्या हमने सच बोला है, हमने अपनी माँ बाप को सच बोला है, ये ऐसे हम करते हैं ऐसे नहीं करते। इसी उन लोगों ने मेरी बहन को आज जला दिया उन लोगों ने। आप कहाँ थी जब उसको आग लगाई? मैं ऊपर थी आपने देखा था? जी मैं ऊपर छत में। किसने आग लगाई थी? सलमान भाई ने। सलमान ने आग लगाई? जी। आप फिर नीचे आई कि नहीं आई? जब वो बाहर निकला है ना तब मैं नीचे आई हूँ। मैंने कहा क्या हुआ, पानी गिराया उसके ऊपर, फिर पूछा है क्या हुआ, उससे कहा भाई भाई मुझे जलाया है। फिर मैं उसे ऊपर लेकर गई हूँ बाजी के पास, जल्दी जल्दी ऊपर के बाजी, ये नहीं कहा पानी गिराओ, मैंने गिराया पानी। फिर कौन सी भी दवाइयाँ थे पता नहीं कौन सी मरने की थी, पता नहीं कौन सी की, ठीक ठीक वो मैंने दवाइयाँ लगाई है, बाजी को दिखाया। बाजी ने कहा मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। मैंने कहा बाजी मुझे भी नहीं, आप भरे हुए नहीं जाए। बाजी ने कहा झूठ बोले मेरे बेटे को ऊपर इल्ज़ाम लगाना बंद करो। और बस इस बात पर भाई ने उसे सजा दिया और बाद में भाई ने बदतमीजी की है। नाज़रीन, माजी में भी देखा गया कि घरेलू मुलाजमा पे जो है उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और एट द एंड उनको मार दिया जाता है। मेरे साथ फ़याज़ रामे साहब मौजूद हैं, जो आप पहले भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे देख चुके हैं। बड़े जो केस होते हैं उनको देखते हैं, लेकिन इस केस में भी यही देख रहे हैं। सर मुझे बताएं, क्या बात समझते हैं कि छोटी ज़ैनब जो घरेलू मुलाजमा है, क्या उनको इंसान नहीं समझा जाता, उनका मर्डर कर दिया जाता है, चूल्हा फटता है या सिलेंडर फटता है तो मुलाजमा ही जलती है, घर का कोई फ़र्द क्यों नहीं जलता? बहुत शुक्रिया। इसमें सबसे पहले तो ये है कि अभी इसकी 2 FIR कटी हैं थाना मिलत पार्क में। एक 302 की FIR कटी है, एक 376 की FIR कटी है। ये दोनों बहनें वहाँ पे काम करती थी, दोनों की उम्र 9 से 10 साल के करीब है। एक का नाम ज़ैनब है जो कि मर चुकी है, एक का नाम महविश है। तो बात मुख्तसर ये है कि इसमें ये सीधा सीधा मर्डर केस एक लग रहा है, क्योंकि आग का किसी किस्म का कोई शाहिद पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने नहीं आए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक और दीगर एविडेंस के मुताबिक जो बज़ाहिर लग रहा है वो सीधा सीधा ये मर्डर केस एक लग रहा है। और ऐसा मालूम हो रहा है कि जैसे एक मर्डर करने के बाद मुलज़म उसको छुपाने के लिए तरह तरह के तरीके और हरबे इस्तेमाल करता रहा। वो पहले गई थी। जी, जिसकी वजह से मामला मज़ीद जो है वो ख़राब हो गया। अब दूसरी बच्ची जो है वो उसके मुताबिक 2 माह से वो रेप का उसको निशाना बनाता रहा है, इस बच्ची को, छोटी बच्ची को। अब इसके मेडिकल के दौरान ये चीज़ प्रूव हो चुकी है कि इसके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट होता रहा है। अच्छा। तो इसमें यही है कि मेडिकल और दीगर एविडेंस को देखने के बाद तो शुरू में ऑनेस्टली बात है कि जब इन्होंने ये बात की तो मैं भी इस बात को तस्लीम ही करता था कि 9 से 10 साल की बच्ची को कैसे कोई शख्स रेप का निशाना बना सकता है और फिर भी 2 बहनें हैं और किसी को मर्डर कैसे कर सकता है। लेकिन पोस्टमार्टम और दीगर चीज़ों को देखने के बाद ये चीज़ें जो हैं वो सारी चीज़ें जो मशकूक हैं। मुलज़मान कैफ़रे किरदार तक पहुँचेंगे? डेफिनेटली इसमें मैं यही कहूँगा कि जो कानून के मुताबिक बनता है वो डेथ इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। और इसमें हम ये नहीं कहते कि किसी इनोसेंट बंदे को आप फंसा दें। मैं उसमें यही बात करूँगा क्योंकि 302 का ऑफेंस है, किसी बेगुनाह बंदे को इसमें फंसना नहीं चाहिए, लेकिन जो गुनहगार है उसको स्पेयर नहीं होना चाहिए। उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और फैसल फयाज़ भी मेरी दुआएं आपके साथ है, आप बहुत बड़ा केस दुआ ज़ारा जो है हल कर चुके हुए हैं। नाज़रीन, मुझे सिर्फ इस चीज़ का सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला कि अगर सिलेंडर फटता है तो उससे मुलाजमा ही इंतकाल फरमाती है या झुलसती है, कभी घर का कोई फ़र्द ज़ख्मी नहीं हुआ। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।